In today's video, I'm going to tell you how to go from this to this without breaking the bank. Hello glowies, welcome back to my channel. Today's agenda is how to look 10 times better. Let me remind you, you are already beautiful. It's just आपने अभी तक अपना best version discover नहीं किया है. So, the purpose of today's video is, believe me or not, but looks matter. Yes, your physical appearance matters a lot. Because not everyone is going to come and talk to you and then make any judgments about you. Most of the people, judge the book by its cover, and it's a hard reality. So today I'm going to talk you through 5 different ways that helped me boost my self-confidence and elevated my personal style. Starting from here, if you are still in this era of hairstyles, so please jaag jao because they are completely out of trend. Instead, go for sleek buns, sleek hairstyles, slick back hairstyles, straight hair, वो कभी भी out of trend नहीं जाते, wavy hair, वो कभी भी out of trend नहीं जाते, and everything about you is subjective, right? मिरर के आगे खड़े होकर एक बार जरूर देखो कि जो आपने हेयर स्टाइल बनाया है क्या वो आपके फेशियल फीचर्स को, आपकी पर्सनैलिटी को फ्लैटर कर रहा है. सो 1 मिनट अपने आप को जरूर दो कि आप उसमें कैसे लग रहे हो. एक बार उसको देखो, जज करो खुद को, ठीक है. What my belief is कि keep on experimenting with your hairstyles, ठीक है. If you have certain facial shape, हो सकता है कि कोई एक पार्ट आपको बहुत फ्लैटर कर रहा है. जैसे मुझे ऐसे लगता है कि मेरे फेस पे सेंटर पार्टीशन सबसे ज्यादा फ्लैटर करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि साइड पार्टीशन नहीं करती. वो भी कभी करती थी, शायद इन फ्यूचर भी करे, बट अभी मेरे को लगता है कि जितनी सेंटर पार्टीशन अच्छी लगती है उतनी कोई और पार्टीशन नहीं लगती. तो यू ऑल्सो हैव टू डिस्कवर इट योरसेल्फ कि आपके फेस पे कौन सी पार्टीशन अच्छी लगती है. गो फॉर दैट. एंड second thing is work on the texture of your hair. It is very, very, very important. Regular trims, oiling, the texture of your hair matters a lot because देखने में जो बाल बहुत dull और frizzy लग रहे हैं, they do not look attractive at all. तो उसके texture के ऊपर work करने के लिए try to use leave-in conditioners. अगर आपके hair बहुत frizzy and dull हैं, leave-in conditioners use कर सकते हो. You can switch to serums. अपनी एक hair care routine बनाओ जिसकी वजह से जो texture है बहुत shiny, बहुत attractive आपके hair लगे. अगर आपने ज़्यादा style उनको नहीं भी किया है, still they look good. Now comes face. So whether it's the skin of your face or your body, it has to look really very healthy. And for a healthy looking skin, moisturizer is the key. किसी की भी अगर skin बहुत ही dull लग रही है या फिर flaky है, dry है, it does not attract anyone at all. तो जब भी आप उसे देखोगे, you will feel like कि कितना dull face है, कितना rough सा face है, right? So moisturizing is the key. It does not matter you have a oily skin, you have a dry skin, moisturizer has to be in your skincare. For a healthy looking skin, you have to have a good skincare which consists of a regular face wash and then you have to have a good moisturizer. Moisturizer plays a very crucial role. आपको मैंने अभी बता दिया. Then you have to have a scrub so that आप अपनी dead skin को exfoliate कर सको, चाहे वो आप weekly करो, चाहे वो bi-weekly करो. Then a face razor. It is a game changer. Trust me, it is a game changer. Because जब हम face raise करते हैं तो उसकी वजह से जो peach fuzz है वो निकल जाती है, तो नीचे से जो skin आपकी नजर आती है, it looks radiant and glowy. इसके साथ साथ स्किन केयर के बाद यू हैव टू हैव सम गुड मसाजेस. फेस मसाजेस एंड फेस योगा हेल्प्स अ लॉट टू कीप योर स्किन लुक रेडिएंट, ग्लोई एंड यूजफुल. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ द फेस. सो लिटिल बिट ऑफ मेकअप हेयर एंड देयर हेल्प्स अ लॉट, ठीक है. तो मेकअप इज नॉट लाइक कि आपको एक मास्क पहनना है, ठीक है, जिससे आप पहचाने ना जाओ बाद में. इट्स जस्ट एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ योर नेचुरल फीचर्स. So you have to figure out what works for you. For me, it is like मैंने अपने eyebrows बना लिए, थोड़ा सा इन्हें fill up कर लिया, and then I put my blush on. I am all set to go anywhere and everywhere. मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती. No lipstick, no काजल, no mascara. So you have to figure it out for yourself कि आपके लिए क्या वर्क करता है. मस्कारा वर्क करता है, eyebrows वर्क करते हैं, blush वर्क करता है, काजल वर्क करता है, क्या वर्क करता है. You have to figure that out for yourself. खड़े हो जाओ मिरर के आगे, कीप डूइंग इट एंड देखो क्या सबसे ज्यादा फ्लैटर करता है आपके फेशियल फीचर्स पे. लास्ट बट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज योर स्माइल. अ स्माइलिंग फेस अट्रैक्ट्स everyone. You can attract everyone around you with your smile. So you have to have that subtle smile on your face so that वो एक welcoming, बहुत ही warming सा किसी को vibe आया आपको देख के and people can approach you to talk to you. Now comes your body. Have you ever wondered कि जो celebrities हैं, how do they look stunning all the time? मतलब अवार्ड फंक्शंस में तो ठीक है, किसी गेट टुगेदर्स में तो ठीक है, इवन अगर आप उन्हें जिम के बाहर भी स्पॉट कर लोगे तो वो तब भी बहुत अच्छे दिखते हैं. तो उनके ही अच्छे दिखने का राज क्या है? देयर फिट बॉडीज. बिलीव मी और नॉट, फिट एंड हेल्दी बॉडीज अट्रैक्ट पीपल. सो द फिटनेस ऑफ बॉडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन कीप योर बॉडी फिट बाय डूइंग लिटिल बिट ऑफ योगा, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेस. जरूरी नहीं है कि यू हैव टू हैव हार्ड जिम रूटीन की जिसमें जाके इतने बड़े बड़े डंबल उठाने हैं. यू हैव टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्कआउट. नहीं, अगर हम थोड़ा बहुत वर्कआउट भी डेली बेसिस पे करते रहते हैं, इट टोन्स अप आवर बॉडी. तो जिस
बॉडी है वो हेल्दी भी लगती है एंड अट्रैक्टिव भी लगती है। अदर थिंग इज ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी सर्टेन बॉडी टाइप है तो यू हैव फॉलो दोज रूल्स कि हाँ मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दोज सैम्पल्स। इसकी वजह से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट इट्स जस्ट कि आप जो पहनोगे वो आपकी बॉडी पे, बॉडी टाइप पे, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ज्यादा फ्लैटर करेगा, बिकॉज जो वो टेक्निक्स होती हैं दे टेंड टू बैलेंस योर बॉडी शेप, ठीक है। तो अगर किसी के वॉल्यूम यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो उन बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंग, बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग वी पुट वॉल्यूम है, ठीक है। सो इफ somebody has like narrow body, ठीक है, तो ऊपर अगर वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे कम है, तो नीचे हम जो लोअर है उसमें वॉल्यूम ज्यादा डालेंगे, तो हम थोड़ा फ्रिल्स वाली चीजें वहां पर पहनेंगे, तो वो थोड़ा सा हमारी बॉडी शेप को वो चीजें, वो टेक्निक्स क्या करती हैं, फ्लैटर करती हैं। बट इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन वेयरिंग समथिंग, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज है वो मेरी बॉडी पे मेरे को पहनी हुई, वो शायद इस टेक्निक को फॉलो नहीं कर रही है, बट वो मेरी बॉडी पे पहनी हुई मेरे को अच्छी लग रही है, तो गो विद दैट, ट्रस्ट योर कट। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज वेयर आयरन क्लोथ्स। जिन कपड़ों पे सिलवटें होती हैं ना वो नहीं अच्छे लगते हैं। फर्ज करें आपने पहने हुए हैं कपड़े जिसके ऊपर बहुत सिलवटें हैं, राइट, तो जो सामने से आपको कोई देखेगा वो बंदा कहेगा यार ये बंदा ना बहुत ही लेजी है, कपड़े भी प्रेस करके नहीं पहन सकता, वहां पे आपके नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड वेन एवर यू गो फॉर शॉपिंग, कभी भी ये देख के मत लो कि यार उसके ये पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर मेरे को ही कलर लेना है अपने लिए। नहीं, हमेशा खुद को टेस्ट करो, मिरर के आगे उस कपड़े को लगाकर देखो कि वो आपके नेचुरल स्किन टोन को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो उसे डल कर रहा है। तो अगर वो कलर आपको लगे कि मैंने जब ये अपने आगे लगाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख के देखा उसको, यार मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा और ब्राइटन अप लग रहा है, ठीक है, विदाउट एनी मेकअप एंड एनीथिंग, थोड़ा सा लिफ्ट हो गया मेरा स्किन टोन, तो वो कलर आपके लिए बना है। बट कुछ कलर्स जब आपने लगाए उसकी वजह से जो स्किन टोन है आपका नेचुरल स्किन टोन वो डाउन हो गया, ठीक है, वो लो हो गया, वो डल लग रहा है आपको अपना फेस, तो वो कलर्स कभी भी आपको बाय नहीं करने हैं। आई हैव 5 कलर्स जो ऑलमोस्ट 99% एशियन स्किन टोन्स पे अच्छे लगते हैं। दैट इज यू कैन हैव ब्लैक, you can have beige, you can have gray, emerald green and navy blue. Next thing to consider is never go mad about trends. You know, अगर कोई चीज ट्रेंड में है तो तुमने 4-5 चीजें वैसी खरीद के रख ली है, no, never do that, because once it's out of trend, it's gone. तो वो आपके ऊपर पहनी हुई फ्लैटर नहीं करेगी। So stick to solids, neutrals. ये जो कलर्स हैं कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाते, किसी भी ओकेजन पे पहन लो, किसी गेट टुगेदर पे पहन लो, कॉलेज जाने के लिए पहन लो, काम के लिए पहन लो, they will definitely look good on you. So बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स हो गए, शिमर्स हो गए, मेटालिक्स हो गए, ऐसी चीजों को ज्यादा होल्ड मत करो, बिकॉज इनका जो टाइम स्पैन होता है, इनका जो ट्रेंड होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, तो वंस दे आर गॉन वो आपके किसी भी यूज के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कंसिडर इज योर पोस्चर। गुड पोस्चर मैटर्स अ लॉट, बिकॉज अगर अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी पीठ बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, मैं एक अच्छे पोस्चर में बैठी हुई हूँ, तो आई विल लुक अट्रैक्टिव। बट अगर ये मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ और आपके साथ बात करूँ, हाँ ऐसे वैसे विदाउट एनी स्माइल, कोई फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं है और कोई स्माइल नहीं है, बस ऐसे करके बैठी हूँ, तो क्या आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे? नो, नॉट एट ऑल। तो जब भी हम चाहते हैं कि कोई बंदा हमारे साथ कनेक्ट कर पाए, यू हैव टू हैव अ गुड पोस्चर। तो आप सीधे चलें, अपने ये जो है शोल्डर्स उठा के ना चलें, आपकी जो पीठ है वो ऐसे बम्पी नहीं होनी चाहिए, तो यू हैव टू हैव अ गुड पोस्चर। ऑल्सो टू लुक मोर पुट टुगेदर, यू कैन एक्सेसराइज योरसेल्फ, यू नो, लिटिल बिट ऑफ एक्सेसरीज, लिटिल बिट ऑफ ज्वेलरी हियर एंड देयर। आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा ज्वेलरी होल्डर नहीं हूं मैं, आई डोंट लाइक पुटिंग ज्वेलरी। मेरे को देखते हो आप बहुत मिनिमल सा होता है, तो यू कैन हैव अ सिंपल चेन, सिंपल इयररिंग्स जो मैच कर जाए। आई ऑलवेज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेयरिंग पर्ल्स, दीज आर द बेस्ट। मतलब ये ऐसी चीज है ना जो किसी के साथ भी पहनोगे अच्छी लगेगी। तो आप एक ऐसा पेयर रख सकते हो जो सबके साथ चले। आई थिंक पर्ल्स जो है वो सबके साथ चलते हैं, यू कैन हैव देम, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लिटिल बिट ऑफ रिंग्स, चेन्स, they also make you look put together more, so आप jewelry भी explore कर सकते हो। Next part is hands and feet. Your hands and feet tells a lot about your personality, and this is the one part where most of the people tend to ignore. मतलब हम सोचते हैं हमारे हाथ और हमारे पैर कैसे लग रहे हैं। So I have some tips for you कि आप इनकी हेल्थ को, आप इनकी स्टेट को कैसे मेंटेन कर सकते हो। The first thing is आपके जो hands, आपके nails हैं, अगर तो वो बड़े हैं, make sure they do not have grime and dirt in them. सेकेंड थिंग इज आपकी जो नेल्स की लेंथ है वो इवन होनी चाहिए, बड़े छोटे टेढ़े मेढ़े नेल्स नहीं होने चाहिए। दे लुक रियली वेरी डर्टी और बहुत ही बुरे लगते हैं वो। तो हैव मंथली सेशंस ऑफ मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स। अगर बाहर से नहीं करवा सकते आप खुद कर सकते हो, इतनी कोई टफ चीज नहीं है कि आप खुद ना कर पाओ। जो नेल पेंट है वो चिप्ड नहीं होनी चाहिए। आई एम अ वुमन, आई नो कि वो नेल पेंट को मेंटेन करना इज रियली टफ, क्योंकि वो 1-2 दिन के बाद ही चिप ऑफ होनी शुरू हो जाती है। बट आप क्या कर सकते हो, आप घर पे जेल नेल्स कर सकते हो। यू जस्ट ऑर्डर वो एक यूवी लैम्प और कुछ नेल टॉप कोट्स हो गए, बेस कोट हो गए। इट्स वेरी इजी, ऑल ओवर द यूट्यूब यू कैन फाइंड इट कि कैसे करते हैं। यू कैन डू देम और यू कैन स्विच टू यू नो प्रेस ऑन्स। अगर कुछ भी नहीं करवा सकते तो आप उनको एक
साइज का छोटा विदाउट नेल पेंट तो रख सकते हो ना, तो वो हाथ ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू चिप नेल पेंट और बड़े छोटे नेल्स. नाउ कम्स द फाइनल पार्ट एंड दैट इज योर शूज. In terms of shoes, I would highly recommend that go for quality over quantity. Because अगर आपके पास एक ही पेयर है जो दिखने में बहुत अच्छा है, आपके पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, आपकी बिल्कुल फिटिंग का है, आपके साइज का है, वो बाकी सारे रैंडम पेयर्स को सरपास कर जाएगा. जब भी आप शू शॉपिंग कर रहे हो, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले फिटिंग का, जो शू का साइज है दैट हैज टू फिट प्रॉपर्ली इन योर फीट. वो बड़ा नहीं होना चाहिए, ना वो छोटा होना चाहिए. इफ यू आर शॉपिंग समथिंग कि जिसको आपको 6 से 7 घंटे पहना है, देन गो फॉर कंफर्ट ओवर द स्टाइल. बिकॉज अगर आप ऐसे चलोगे जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आई थिंक कुछ ऐसा पहना है जो कंफर्टेबल है, उसके साथ अच्छे से चल तो सकते हो ना. आपका गुड पोस्चर भी मेंटेन रहेगा, आपके फेस पे स्माइल भी रहेगी. सो प्रेफर कंफर्ट ओवर स्टाइल. एंड देन अगेन डोंट डोंट फ्लो टू मच विद द ट्रेंड्स, कि क्योंकि ट्रेंडी चीज जो है वो आज है वो कल नहीं है. तो सबसे पहले जब आप अपनी कलेक्शन मेंटेन कर रहे हो, तो सबसे पहले यू हैव टू हैव सम बेसिक्स सो दैट वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड ना जाए और आपको उन्हें पेयर करने से पहले ज्यादा सोचना ना पड़े. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शूज व्हाट आई बिलीव इज कि हर लड़की के पास होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहले हैं बैले फ्लैट्स. बैले फ्लैट्स जिन्हें हम बैलीज भी बोल देते हैं, तो वो होनी चाहिए बिकॉज वो बहुत ही सारी चीजों के साथ चले जाती हैं, जैसे कि फॉर्मल्स हो गए, हमारे ड्रेसेस हो गए, जीन्स हो गए, सबके साथ चलती है. सो यू कैन हैव देम इन ब्लैक, बेज और चेरी कलर. तो इन तीनों कलर्स को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता किसी के साथ भी पेयर करने से पहले, और तीनों अच्छे लगते हैं. सेकंड पेयर यू कैन हैव इज अ गुड स्नीकर्स, क्योंकि जो स्नीकर्स हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या फिर अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, दे हैव गॉट यू कवर्ड. तो ये आप चाहे फ्लोई ड्रेसेस के साथ पेयर कर लो, चाहे जीन्स के साथ पेयर कर लो, इवन विद टेलर्ड पैंट्स, ये उनके साथ भी बहुत फ्लॉलेस लगते हैं. थर्ड शू यू हैव टू हैव इज a pair of nude pumps, जो कि आप अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में भी पहन सकते हो. You can pair them for weddings, for your dinner dates, what else, कहीं पे भी पहन सकते हो. They are going to look great. Fourth and the last pair is over the knee boots. ये आपको चिली मंथ्स में बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे और आपकी जो स्किनी पैंट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे लगेंगे, मेरी ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी पूरी लुक को भी थोड़ा सा एम्प्लीफाई कर देंगे. Alright, that was all I had for you guys. So do let me know your thoughts in the comment section below. Also, we can connect over Instagram and TikTok, and you can just subscribe to my channel so that whenever I post, you get notified. So चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, bye bye, take care, glowies.